Good evening. My name is Amol Kirat Kaur. As said earlier, I have done my MPhil Clinical Psychology from Government Medical College and Hospital 2016-18 batch. I did my BA Honours Psychology from Lady Shri Ram College, Delhi University, and then I did my Masters from Mumbai University. So, a brief introduction to the hospital. First of all, it's in the city beautiful, so you all will enjoy if you end up getting admitted there. Secondly, it's a 700 bedded hospital and it's a general hospital aided by central government. And the course of MPhil Clinical Psychology run by them is under Center of Excellence, Department of Psychiatry. So, central government hospital with 700 beds, and psychiatry is one of the departments there. So, psychiatry department, we have a ward there which is in the A block on the 4th floor, and then you have a general OPD of the psychiatry department which is in the B block 4th floor. So, the ward includes 70 beds for the psychiatric patients, out of which 8 beds are reserved for patients with substance use disorders. And I would, as per my experience, I would like to tell you that it is one of the premier institutes in the city beautiful, and the MPhil Clinical Psychology course which it offers is very comprehensive, and it makes you really a skilled professional and a clinician to further practice and to end up getting good jobs. So now you all can question me what all you want to know and I'll tell you. You can ask me in as detail you want. Am I audible? Yes, you're audible. Yeah, so you can ask me whatever queries you have and I'll tell you. And we want to know about the paper pattern now. Okay. जो आपका MPhil का पेपर पैटर्न रहेगा वो 100 मार्क का पेपर होगा and you will get 2 hours to attempt your paper. It will be a पेन एंड पेंसिल या आपका सिंपल रहेगा, आपको कुछ वो फिल नहीं करने पड़ेंगे वहां पे. It will be MCQ type, but you won't have to fill those circles. So I'm mentioning this because you will end up saving your time, क्योंकि उस पे टाइम लग जाता है. तो अगर हम 2 घंटे के हिसाब से चले तो आपको पर क्वेश्चन अराउंड you can say you will get less than a minute to attempt it. And most of the paper is tilted towards clinical psychology, which I am frankly telling you. तो अगर हम बात करें कि 100% में से कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा इंक्लूड किया जाता है एंट्रेंस में, दैट इज एबनॉर्मल साइकोलॉजी. बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी होंगे बट देयर परसेंटेज इज कंपैरेटिवली लेस. जो आपके एमए के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे रहेंगे, जैसे कि रिसर्च मेथडोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, you will also have general psychology, you will have social psychology. All these subjects will be there, but the major focus will be on abnormal psychology / clinical psychology. यानी कि disorders के लेवल पे आपसे जो इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी वो ज्यादा होगी. नेक्स्ट, व्हाट एल्स यू वांट टू आस्क? इसी के ऊपर और पूछना है तो आप पूछिए मुझसे. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, even like regarding the therapy questions as well, we'll have some. Yes, मैनेजमेंट भी इंक्लूड होती है. मैं आपको यही गाइड करना चाहूंगी कि अपना, वैसे तो परसों ही एग्जाम है, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग रिविजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट एंड मूवमेंट के जो मैं टिप्स आपको देना चाहूंगी वो यही है कि इफ यू गाइज हैव ICD 10 तो उसको एक बार
फटाफट से एक बार गो थ्रू करके जरूर जाइए. एंड इफ यू हैव साइनॉप्सिस ऑफ साइकेट्री, कैप्लन एंड सडॉक की एक बुक आती है, उसकी एक पॉकेट हैंडबुक भी आती है छोटी सी. उसका ब्रीफ में स्टार्टिंग के पेजेस में हर एक डिसऑर्डर की ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी हुई है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, डिसऑर्डर्स में यू हैव टू यू शुड बी थरो विद ईच डिसऑर्डर. आपको उस डिसऑर्डर के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए उस डिसऑर्डर की. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर रीडिंग अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया, सो यू शुड नो दैट विच इज द कैटेगरी. ये जैसे साइकोटिक डिसऑर्डर्स के स्पेक्ट्रम में आता है, और DSM-5 के अकॉर्डिंग इसके क्राइटेरिया में क्या चेंजेस हुए हैं. लाइक इन DSM-5 द 5 टाइप्स ऑफ सब टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया हैव बीन रिमूव्ड. तो ये सब आपको नॉलेज, हिस्ट्री में आपको ये पता होना चाहिए कि इसको पहले किस नाम से जानते थे, फिर इसको क्रिपलिन ने ये नाम दिया. ऑल दीज मतलब इन डेप्थ क्वेश्चंस यू शुड बी थॉरो विद. एंड सेकेंडली, फिर आपको कॉजेज पता होने चाहिए. दैट मीन्स इटियोलॉजी की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए डिसऑर्डर की. फिर उसके बाद इसकी मैनेजमेंट, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल दे आस्क यू लाइक स्किज़ोफ्रेनिया इज बेस्ट मैनेज्ड बाय, एंड दे गिव यू 4 क्वेश्चंस. सो यू शुड नो दैट कि स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी चीज है जो 80% मेडिसिन से ठीक होती है, जिसमें साइकोथेरेपी का बहुत कम रोल है. सो यू शुड हैव दिस ब्रॉड नॉलेज एंड इन डेप्थ नॉलेज अपॉन द स्पेसिफिक फैक्टर्स, जैसे हिस्ट्री, कौन से ईयर में किसने नाम दिया, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया. ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए बिफोर यू सिट फॉर द GMCH एग्जाम, बिकॉज देयर पेपर इज हाईली टिल्टेड टूवर्ड्स, अगेन आई विल रिपीट, क्लिनिकल साइकोलॉजी. और क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत इन डेप्थ में पूछी जाती है. They will have questions on sexual disorders, you will have questions on sleep disorders, you will have questions on developmental disorders, जिसमें आपको childhood autism क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए. ऑटिज्म के 3 मेन पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो सब पता होना चाहिए. सो चाइल्डहुड ऑटिज्म की एज रेंज क्या होती है, इतनी माइन्यूट डिटेल्स यू शुड नो. लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए. जैसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो सारा प्याजे की थ्योरी पे बेस्ड है, एज यू ऑल नो. सो यू शुड क्लियरली नो, ये जनरल साइकोलॉजी से भी लिंक हो गया. जैसे कि प्याजे की थ्योरी के जो 4 आपके डोमेन्स हैं, द स्टेजेस, कॉन्क्रीट, फॉर्मल, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी, मोटर, ये सब आपको क्लियरली पता होना चाहिए. लाइक विच क्वेश्चन, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई रिमेम्बर वन क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड कि सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी एज से कहाँ तक है, दूसरी कहाँ से कहाँ तक है. सो ये सारे क्वेश्चंस. बट once again, read again and again your clinical psychology part thoroughly. और आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? Ma'am, it means the more focus is on abnormal psychology. बिल्कुल clinical बिल्कुल. psychology. अगर आप मान के चलेंगे बात, तो 70% पेपर आपका क्लिनिकल पे ही बेस्ड होगा. Okay. ठीक है. और अगर जैसे अब आपका एक ही दिन रह गया है, तो मैं आपको यही सबको सजेस्ट कर सकती हूँ कि एक तो अपना जो आपका 11th-12th का बुक है, राइट, साइकोलॉजी NCERT बुक, उसमें से Yes, ma'am. उसमें से ज्यादा तो कुछ नहीं आएगा, बट GP का जो जनरल साइकोलॉजी का पार्ट है, उसमें जो आपके हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक इफ यू गो टू योर 11th-12th साइकोलॉजी बुक, यू विल सी हाईलाइटेड इन ब्लैक इन ईच चैप्टर द कॉन्सेप्ट्स. तो एक क्विक गो थ्रू, फ्लिप थ्रू जरूर उसको कर लेना. उसकी पीछे से ग्लॉसरी पढ़ लेना. पीछे बुक के एंड में ग्लॉसरी होती है. That really helps you because कुछ टर्म्स की डेफिनेशन और मीनिंग्स वहां प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड होते हैं, तो वो पूछा जाता है वहां पे, which acts as a distractor question, like this term stands for, तो नीचे आपको 4 डेफिनेशन दिए जा सकते हैं. तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए आपको लगेगा ये भी है, बट इफ यू हैव read the glossary properly, you will able to answer it properly.
और दूसरा मैं यही कहूंगी, जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बुक है उसमें डिसऑर्डर्स एक बार वापस से गो थ्रू करिए। अगर ICD-10 है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसका PDF डाउनलोड कर लेना ऑनलाइन से, एंड जस्ट गो थ्रू द कैटेगरीज ऑफ डिसऑर्डर्स। यू शुड बी अवेयर, ये ना हो कि आपको पता ही नहीं है कि ये डिसऑर्डर किस कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव डिमेंशिया, डिलीरियम, दे फॉल अंडर योर ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम्स। तो ये सारा वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है। F कैटेगरी जो ICD-10 की होती है उसमें F1 कौन सा है, ये कौन सा है, वो क्लियरली आपको साइकेट्री वाला रिलेटेड सारा पार्ट ICD-10 का क्लियर होना चाहिए कि कितनी कैटेगरीज है ICD-10 में। Like F20 is schizophrenia. So this when you will download your ICD-10, from the first page itself quickly you can see that how many total categories are there जिनके अंदर हमारे majority disorders होते हैं। फिर मेंटल रिटार्डेशन इज अनदर वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके ऊपर भी जरूर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको IQ का डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए, किसने कौन से ईयर में दिया, लाइक अमेरिकन साइकेट्रिक सोसाइटी गेव इट इन विच ईयर और इंडियन गेव इट इन विच ईयर। ये थोड़ी सी नॉलेज, IQ के लिमिट्स की नॉलेज की माइल्ड किस रेंज में होता है, मॉडरेट, माइल्ड वाले क्या कर सकते हैं, मॉडरेट वाले क्या कर सकते हैं, सीवियर वाले, दिस ऑल नॉलेज यू हैव। लाइक माइल्ड इज एजुकेबल बट मॉडरेट इज जस्ट ट्रेनेबल। सो ये ऐसे क्वेश्चंस भी थोड़े प्रैक्टिकल बेस्ड भी आएंगे। व्हाट एल्स यू वांट टू आस्क? मैम टेस्टिंग के क्वेश्चंस लाइक प्रोजेक्टिव टेस्ट, यस, पर्सनालिटी यस, बिल्कुल एंड आता है। IQ टेस्ट। यू शुड बी वेरी क्लियर कि IQ टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट है, इंडियन अडेप्टेशंस कौन सी हैं टेस्ट की, कौन से ईयर में वो आई हैं, एंड यस, टेस्टिंग के और भी टेस्ट होते हैं, लाइक सेमी प्रोजेक्टिव टेस्ट में कौन से आएंगे, यू शुड नो अबाउट दैट। यू शुड नो प्रोजेक्टिव में कौन से फॉल करते हैं। You should, like in projective test you have Rorschach, which is very important। तो Rorschach की आपको हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए कि ये टेस्ट किसने डेवलप किया, इनिशियली कितने कार्ड्स थे, और इसके स्कोरिंग सिस्टम्स कौन कौन से, लाइक करंटली द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इज एक्सनर। तो बाकी के भी आपको पता होने चाहिए। एक्सनर उसका नाम है साइकोलॉजिस्ट का जिसने वो सिस्टम दिया है, सो वी कॉल इट द एक्सनर सिस्टम। सिमिलरली देर आर अदर सिस्टम्स ऑल्सो, जैसे बेक ने दिया है, बेक का सिस्टम है। सो आई थिंक 4 to 5 people have given the scoring systems। You should know hierarchy wise कि पहले किसने दिया। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जैसे मैच द फॉलोइंग में आ गया कि रोशा के स्कोरिंग सिस्टम्स को मैच करो, तो यू शुड नो कि दिस सिस्टम, स्कोरिंग सिस्टम वाज गिवन बाय दिस इन दिस ईयर। बिल्कुल टेस्ट पे आते हैं क्वेश्चंस। TAT का इंडियन अडेप्टेशन किसने दिया, जैसे उमा चौधरी ने दिया, हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। यू शुड बी क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स की, जैसे सेमी प्रोजेक्टिव में कौन से टेस्ट फॉल होते हैं, प्रोजेक्टिव में कौन से होते हैं, क्वेश्चनर कौन सा है, रेटिंग स्केल कौन सा है, इन्वेंट्री कौन सी होती है। सो दिस ऑल यू शुड नो। यस, व्हाट एल्स? मैम रिसर्च में कितना इन डेप्थ आता है? रिसर्च में भी आता है और डेप्थ में ही आता है। लाइक आई रेफर्ड, पर्सनली स्पीकिंग, आई रेफर्ड द बुक ग्रेगरी। इफ यू नो, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही रेफर करते थे। रिसर्च मेथडोलॉजीज में AK सिंह भी रेफर कर सकते हो आप, दैट इज ऑल्सो गुड एज फार एज एंट्रेंस इज कंसर्न, एंड ग्रेगरी इज ऑल्सो गुड। दोनों की लैंग्वेज भी इजी है। तो इसमें इन डेप्थ में आएगा, जैसे रिलायबिलिटी है तो यू नो द टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी दैट कैन बी आस्क्ड, यू नो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, वो पूछा जा सकता है। बट इसमें भी उसको और मुश्किल बनाया जाएगा। मुश्किल जैसे कि वैलिडिटी आपको 3-4 तरह के, एक तरह से आप मान लीजिए सेंटेंसेस दिए जाएंगे कि इतने स्टूडेंट्स थे, इतने आइटम्स थे टेस्ट में, इतने ये पास हुए, इतने ये फेल हुए, समथिंग लाइक दैट, एंड देन यू हैव टू गेस व्हाट काइंड ऑफ वैलिडिटी दे आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर आप कंटेंट वैलिडिटी, ये सारी टाइप्स ऑफ वैलिडिटी से जब तक आप बहुत अच्छे से, आपको समझ नहीं है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट, तो फिर आप उसको पता होते हुए भी पिक नहीं कर पाओगे।
because they will not give you straight forward, जैसे content validity का definition उठा के दे दिया और बोला which kind of, no, they will on basis of the type of validity they will give you a scenario, and from that you have to guess like the scenario which is mentioned is talking about which kind of validity. Yes, और रिसर्च मेथोडोलॉजी अगर मैं कहूँ तो आई थिंक इट इंक्लूड्स योर 10% ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम. Yes, keep on asking. Ma'am, can you also share some experience, your experience at GMCH? Yes. It's a wonderful experience at GMCH. The best part is the exposure of training which is given to us is very comprehensive and very dynamic. We have the postings at ward, like they have the inpatient department जिसको हम IPD बोलते हैं, वो ward होता है. फिर we have the outpatient department, that is the general OPD, psychiatry की वो OPD होती है. फिर GMCH में हमें community postings भी दी जाती हैं, जैसे कि in the rural settings our teams go from GMCH, which includes one clinical psychologist, that is an MPhil trainee. So you are exposed to the community setting also. And then you have DART, which is a part of GMCH, and I don't think ऐसा exposure आपको कहीं और मिलेगा. DART stands for Disability Assessment and Rehabilitation Triage. तो अगर हम अपनी ट्रेनिंग में ये तो सीखते ही हैं कि हमने साइको डायग्नोस्टिक कैसे करना है, साइकोथेरेपी कैसे देनी है, असेसमेंट कैसे देनी है, बट डार्ट एक ऐसी प्लेटफॉर्म है GMCH में जहां हम ये भी सीखते हैं कि अगर हमने एक पेशेंट को असेस कर दिया, डायग्नोज कर दिया, तो उसके बाद क्या. So over there we learn that how we have to rehabilitate the patient. Like once the patient is out of the hospital, then how he or she has to be again replaced in the society. तो वहां पे डार्ट में भी हमारी पोस्टिंग होती है. ये सारी आप मान लीजिए आपकी वार्ड में पोस्टिंग रहेगी, ओपीडी में पोस्टिंग रहेगी, कम्युनिटी में पोस्टिंग रहेगी, डार्ट में पोस्टिंग रहेगी. एंड हेयर यू विल लर्न. वार्ड में आप अपना 9 to 5 आपका टाइमिंग रहता है हॉस्पिटल का, एंड उसके दौरान वार्ड में आपके वार्ड राउंड्स चलते हैं in the morning, wherein each and every patient का case history, the diagnostic formulation, the assessment, everything is discussed. And वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मेजॉरिटी लर्निंग आपकी होती है एक डिसऑर्डर के बारे में. So each and every psychologist, HOD, all of them come as per the ward round day they have, and then they discuss the patients under them. So this is how ward functions. Ward का एक benefit है कि आपका hand on face to face experience होता है आपका पेशेंट्स के साथ. जैसे कि आप अगर कोई मेनिया का पेशेंट है, आई होप यू अंडरस्टैंड, मेनिया का पेशेंट है, सिंस यू माइट ऑल आर मास्टर स्टूडेंट्स, मेनिया बता देती हूँ, किसी को तेजी आती है बहुत ज्यादा. तो इफ समवन इज हैविंग अ मेनिक एपिसोड, यू आर एबल टू ऑब्जर्व दैट पेशेंट इन द वार्ड. यू आर एक्चुअली एबल टू सी द सिम्टम्स फेस टू फेस. आप अच्छे से सीख सकते हो कि वाकई में ये होता है. उसके बाद उसकी मेडिसिन भी आपके सामने डिस्कस होती हैं. जो असेसमेंट वाला पार्ट है वो हमें दिया जाता है, बट द बेस्ट पार्ट इज कि वी आर ट्रेनीज, सो एवरीथिंग वी लर्न इज अंडर सुपरविजन. तो ये नहीं कि हम पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट कर दी. अगर हमें कोई चीज अलॉट की जाती है, सो वी हैव आवर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वी हैव असिस्टेंट प्रोफेसर्स ओवर देयर हु कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज अस. सेकेंडली आपकी जो पोस्टिंग होती है ओपीडी में होती है. ओपीडी में आपकी 9 to 5 ही होती है ड्यूटी, बट दी ओपीडी टाइमिंग्स है 9 to 1. यानी कि जो पेशेंट्स हैं वो 9 to 1 आते हैं, तो वो हमें तुरंत देखने पड़ते हैं. लाइक इफ 4 of us, your batchmates are posted in the OPD, so 2 patients we'll get, like उनका IQ टेस्ट करना, किसी का SLD असेसमेंट करना, किसी की साइको डायग्नोस्टिक करनी लाइक द रॉर्शक और 16PF. सो दिस ऑल इज डिवाइडेड. ये एक प्रॉपर चैनल से चलता है. जैसे जैसे पेशेंट आते हैं वो हमें अलॉट कर दिए जाते हैं. उसके बाद हमारी पोस्टिंग डार्ट में होती है. एज आई टोल्ड यू, हियर वी लर्न हाउ टू रिहैबिलिटेट द पेशेंट. लाइक
यहाँ पे एक बार पेशेंट हॉस्पिटल के वार्ड से छूटकर आ गया, तो अब हम उसको देखेंगे कि इसका एजुकेशनल लेवल क्या है, इसकी मेंटल जो इलनेस है उसका डिसेबिलिटी लेवल क्या है, तो इसके बेस पे इसको हम किस तरह की सर्विस में इनरोल कर सकते हैं. लाइक द सर्विसेज विच आर रन देयर इंक्लूड कुकिंग, the patients are enrolled for cooking services एंड स्टिचिंग होती है, वहां पे एनवेलप्स बनाए जाते हैं और बकायदा इन सबकी पेमेंट दी जाती है उनको, बिकॉज द फूड विच इज मेड लाइक दैट कैन बी यूज फॉर डब्बा सर्विसेज. एनवेलप्स आर सोल्ड एंड द इनकम विच इज generated is distributed among the patients. So this way they are rehabilitated in the society. तो हमें इस चीज का भी exposure मिलता है. And also there are special clinics which are run in GMCH, जैसे कि child guidance clinic which is run on the Tuesdays in the afternoon. So that means उस दिन आपके autism के groups चलते हैं जहाँ पे parent management sessions दिए जाते हैं, पेरेंट्स की ग्रुप काउंसलिंग होती है wherein they are taught how to handle a patient or a child with autism. मतलब उस दिन ट्यूसडे आप लगा लीजिए हर तरह का चाइल्डहुड डिसऑर्डर आपको वहां को देखने को मिलेगा, उसकी मैनेजमेंट भी, उसकी टेस्टिंग भी. सो दोज आर द स्पेशल क्लिनिक्स विच हैव अ स्पेशल डे अलॉटेड. On the Mondays you have the de-addiction clinic wherein you will find all substance use disorders. On the Fridays you have marital and sex clinic which is the MSC clinic, so you will have a good exposure to आपका ये जो interpersonal therapy होती है, divorce के issues होते हैं, legal issues होते हैं, and the sexual disorders part, that all is covered. And so this is the experience. And community setting की बात करें तो आपकी 1-2 महीने की पोस्टिंग कम्युनिटी में सबकी होती है, टर्न ऑन टर्न. यू आर टेकन बाय द एम्बुलेंस और द vehicle of GMCH to the place in the rural setting, wherein one psychiatrist goes along with us, one clinical psychologist, that is you guys, or the trainees, MPhil trainees जो आप लोगों में से होंगे, और वो जाते हैं साथ में, एक साइकेट्री की नर्स जाती हैं एंड मेडिसिन लेके जाते हैं हम लोग, एक अटेंडेंट जाता है. तो वहां पे जो हमारी सेटिंग होती है, वहां पे हम सुबह कम्युनिटी सेटिंग में जाके हमारे रूम्स होते हैं, देयर वी टेक आवर प्लेसेस. एंड सिमिलरली ओपीडी में जैसे पेशेंट्स आते हैं वैसे ही हम लोग कम्युनिटी में पेशेंट्स देखते हैं. I hope you could get something about the experience. Yes, ma'am, a lot. Thank you. Yeah. अभी आगे आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए. मैम पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं? सोशल साइकोलॉजी भी पूछी जाएगी, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि जितना भी आप लोगों के पास टाइम है ना एक दिन का, आप अब नॉर्मल पे फोकस करिए. और जहां तक सोशल साइकोलॉजी की बात रही तो सी दे कैन आस्क यू एनीथिंग, देयर इज नो लिमिट. बट द थिंग इज कि अभी के लिए एक दिन के लिए मैं आपको यही बोलूंगी कि जो हमारी व्हाइट कलर की बैरन की बुक होती है एमए में या बैचलर्स में फॉर सोशल साइकोलॉजी, जस्ट पिक अप दैट, एंड उसके जो बीच में हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट्स है हर पेज पे, जस्ट रीड थ्रू इट. आप अगर वो किताब को खोलेंगे तो उसके अंदर साइड पे बॉक्सेस में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशंस दी होंगी. For example, there is one social psychology concept, ceiling effect. तो किसी को पता है ceiling effect? If anyone knows, please answer. Yes, ma'am. When I read for the gender discrimination, Yeah. women are not given opportunity in terms of how much male get the opportunity. हायर पोस्ट पे एक वुमेन को प्रेफर ना करके एक जेंट्स को प्रेफर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द सीलिंग इफेक्ट. सो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सोशल साइकोलॉजी में. तो आई थिंक सोशल के लिए जीएमसीएच के एंट्रेंस के लिए इट्स इनफ इफ यू राइट नाउ जस्ट फ्लिप थ्रू योर सोशल साइकोलॉजी बुक एंड जस्ट रीड द हाईलाइटेड, जो ब्लैक कलर में हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं इन ईच चैप्टर, जस्ट गो थ्रू देम. आई थिंक दैट विल बी वेरी मच ओके. Ma'am, what about biopsychology? Is it asked in detail? No, I don't think it's asked in detail. बायोसाइकोलॉजी नहीं, बायोसाइकोलॉजी आपको इन डिटेल एमफिल में पढ़ाई जाएगी.
which is also called behavioral medicine. It is biopsychology only. That will be your in-depth curriculum ka part in the second year of your MPhil. So I don't think that is much of a focus right now. हाँ, लेकिन डिसऑर्डर्स में जितना उसका लिंक है, जैसे इटियोलॉजी में स्किजोफ्रेनिया, तो उतना आपको पता होना चाहिए कि स्किजोफ्रेनिया में जो बायोमेडिकल मॉडल है या बायोलॉजिकल कॉज है का, वो आपको क्लियर होना चाहिए, लाइक कि उसमें जो डोपामीन का लेवल है वो बढ़ता है, कम होता है, विच आर द डोपामीन रिसेप्टर्स, दैट यू शुड ऑल नो. यू शुड ऑल्सो हैव गुड नॉलेज ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि डिमेंशिया, डिलीरियम, ये सब अच्छे से पता होने चाहिए. न्यूरो ट्रांसमिटर्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा एक्साइटेटरी है, कौन सा इनिबिटरी है. सो दीज ऑल थिंग्स यू शुड नो इन डेप्थ. Okay, ma'am. And ma'am, for abnormal psychology, Yes. can we refer to Butcher and Neeraj Ahuja? Is that enough? It's enough. Neeraj Ahuja and Carlson and Butcher are two very comprehensive books, और अभी उतना टाइम भी नहीं है आपके पास. Morgan and King भी हम यूज करते हैं, लेकिन these three books only I also suggest. Neeraj Ahuja, Carlson and Butcher, and Morgan and King. Okay, Ma'am, ma'am. what about Indian psychology? What about Indian psychology. in Indian psychology. Indian psychology? As far as I remember, it did not include much questions. लेकिन हाँ, आपको इंडियन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉलेज होना चाहिए कि इंडियन अडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है. जैसे मैंने पहले बोला, इंडिया में कौन से लैब्स हैं जो पहले एस्टैब्लिश हुए, जैसे कोलकाता में या कहीं भी, व्हाट वाज द ईयर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट. फिर इंडियन साइकोलॉजी में हमारे जो फेमस आपके ये है थेरेपिस्ट या ऑथर्स हैं, वो कौन कौन है, दैट्स ऑल. एज अगेन आई एम रिपीटिंग, GMCH का जो पेपर होता है वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी से लोडेड होता है. एनी अदर क्वेरीज? स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके लिए आप मिनियम एंड किंग को रेफर करिए. उसके अंदर आपको पता होना चाहिए, समटाइम्स स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस आर आस्क्ड यू वेयर यू हैव टू सॉल्व देम. जैसे कि आपको ANOVA, T-test, all these you should know when they are done, what kind of sample on which they are performed. कई बार आपको एक एग्जाम्पल देके वो पूछ सकते हैं कि ये टेस्ट है कि इस pardon, I just missed it. Can someone ask me or someone remind me where was I? Non-stats. Yeah. तो स्टैट्स में वो आपको सॉल्व करने को पूछ सकते हैं, अनोवा का पूछ सकते हैं. दे विल गिव यू प्रॉपर न्यूमेरिकल इक्वेशंस वेयर यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. वो भी रहेगा और आंसर आपका MCQs में किसी भी 4 पार्ट्स में रहेगा, तो आपको वो चुनना है. तो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि T-टेस्ट कब लगेगा, एनोवा कब लगेगी, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की भी इक्वल नॉलेज होनी चाहिए. दैट इज वेयर दे आस्क यू इन डेप्थ. तो पैरामीट्रिक का प्रॉपर पता होना चाहिए, उनका क्राइटेरिया पता होना चाहिए, नॉन पैरामीट्रिक का क्राइटेरिया प्रॉपर पता होना चाहिए. They'll ask you the difference, like where is non-parametric t-test used and what's the difference between parametric t-test. उसके लिए वो directly ना भी पूछ के they can give you an sample question, जिसमें आपको एक वो सिनेरियो दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इस सिनेरियो में कौन सा टेस्ट, statistical test will be used. So उसके लिए आपको बहुत ज्यादा clarification की जरूरत, conceptual clarity होनी चाहिए. Then they will also ask you like degree of freedom. So they will give you कि suppose it's a T-test and what is the formula for degree of freedom. अगर इतना sample size है तो इस टेस्ट के लिए degree of freedom क्या होगी. तो ये सारी चीजें भी आपको clearly पता होनी चाहिए. And Minium and King, the red colored book, is the best for that. और किसी ने मुझसे ये भी पूछा था अभी बीच में पर्सनालिटी का. तो पर्सनालिटी के लिए मैं ये बोल दूं कि यस, पर्सनालिटी थ्योरीज के बारे में कभी कभी इन डेप्थ क्वेश्चंस आ जाते हैं, विच विल अगेन फॉर्मुलेट लाइक 5% और 10% पार्ट. एंड उसके अंदर आप बुक रेफर करिए हॉल एंड लिंडसे, which includes your personality theories, which are in depth.
सो येस दे कैन आस्क यू, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आइसेंक की थ्योरी है, तो उसके जो 8 आपके डेवलपमेंटल स्टेजेस है, सो दे कैन आस्क यू लाइक दिस, एक सिचुएशन दे देंगे कि एक बॉय है, उसको ये प्रॉब्लम है, सो यू फील दैट ही इज करंटली इन विच स्टेज ऑफ आइसेंक्स थ्योरी। ऐसे करके क्वेश्चन आपको पर्सनालिटी में से भी आएंगे। पर्सनालिटी टेस्टिंग की बात करें तो आपको 16 PF में क्वेश्चन इतना डिटेल में भी पूछा जाता है, as far as I remember. This is 16 PF. Of course, it has 16 factors which are named as A, factor Q, factor L, if you remember from your masters. So they can ask you 16 factors में से इनमें से कौन सा factor नहीं है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, Q, L, M, N. So if we don't know that which are the 16 factors और एक उसमें से हमें पूछा जा रहा है, तो हम वो आंसर नहीं कर पाते। तो इतनी इन डेप्थ हमें नॉलेज होनी चाहिए। We should be very clear कि कौन से 16 factors हैं जो 16 factor tests में हैं। So I have given you another example, ऐसा question भी आता है। Someone was writing about the interview. इंटरव्यू के बारे में आपको पूछना है कि once मेरिट में नाम आए तो इंटरव्यू होता है या नहीं, राइट? Am I audible? Okay. So there is no interview at GMCH. You have total 8 seats. Out of which 7 are reserved for the general category and 1 is a reserved seat. 50% से ज्यादा मार्क्स आने या 50% आने 100 में से आपके बहुत जरूरी हैं in order to clear the test. बट मेरिट जो आपकी फॉर्म होगी, यानी कि मेरिट में आने के लिए ही पहले तो मिनिमम क्राइटेरिया है 50 अबव आपके मार्क्स होने चाहिए। देन वंस यू आर 50 अबव, देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड फॉर द मेरिट लिस्ट। तो जब मेरिट लिस्ट में मेरे टाइम का जो स्कोर था दैट वेंट टिल 98। So I'm being very frank that people come from all over India and yes, they are highly intellectual people. And but yes, variation बहुत हो जाता है. Like at our time, the girl who stood at rank 1, she got a score of 98. The second rank was scored by my batchmate. She got a score of 68, and I was on rank 3rd. I got a score of 66. तो अगर आप देखें कितना है, from 98 directly the second one is 68 and then 66. तो ये सब चलता है। उसके बाद अगर किन्हीं दो बच्चों का सेम मार्क्स आ जाता है मेरिट में, सो द एल्डर वन विल बी कंसिडर्ड फॉर द सीट। अगर एल्डेस्ट पे भी सपोज कीजिए सेम ही डेट ऑफ बर्थ है, बोथ आर ऑफ द सेम एज, सो वहां भी मैच हो गया है, सो देन द सेकेंड क्राइटेरिया इज योर मास्टर्स मार्क्स। पीपल हु हैव सेम मार्क्स, if they are of same age, then second criteria which is considered is the one who has higher marks in masters, that will be given the seat. Otherwise, if you are sharing same marks with someone, the elder one will be considered for the admission. And काउंसलिंग के टाइम आपको वक्त पे पहुंचना है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है उस चीज को लेके। वंस यू आर सिलेक्टेड, इफ यू डोंट रीच ऑन टाइम, दे पास ऑन योर सीट टू द अदर पर्सन इफ यू आर अनअवेलेबल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो जब आप पहुंचेंगे, अगर लेट हो गए हैं, वहां कोई सीट बच रही है, तो वो आपको दे देंगे, लेकिन उस समय जब आपका नाम बुलाया जाएगा, इफ यू आर नॉट देयर, दे विल स्किप इट, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। सेकेंडली, अभी एक न्यू पॉलिसी जीएमसीएच में स्टार्ट हुई है, इस चीज की मैं समझती हूँ आपको नॉलेज होनी चाहिए। नाउ दे हैव स्टार्टेड अ बॉन्ड सिस्टम व्हिच आई फील इज वेरी गुड। लाइक आपका जीएमसीएच में मेरिट में नाम आ गया, आपकी एडमिशन हो गई और आपने सीट ले ली, लेकिन कुछ समय बाद आपको लगा नहीं, मेरा एक किसी और प्रीमियर इंस्टीट्यूट में हो गया, आई वांट टू लीव। सो उस केस में किसी और बच्चे की सीट खराब हो जाती है। So when we leave the seat in between the session, so it's a wastage of the seat. So for this regularity, what they have started is admission के time पे ही आपसे कुछ amount का bond भरवाया जाएगा, जो कि अगर आप पूरे 2 साल की ट्रेनिंग करते हैं तो वो आपको रिटर्न की जाती है एंड में। But if you leave midway, then your that bond money is lost. So this is just the थिंक कि सीट वेस्ट ना हो, इसके लिए उन्होंने ये पॉलिसी स्टार्ट किया। आई थिंक इट हैज जस्ट बीन स्टार्टेड फ्रॉम द लास्ट 3-4 years, फ्रॉम द लास्ट 2 बैचेस।
और काउंसलिंग के वक्त आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज का ध्यान रखना है वो मैं आपको अभी बता दूं, सिंस योर एग्जाम इज ऑन 24th एंड योर रिजल्ट विल जस्ट बी कमिंग ऑन मंडे। तो जिन जिन लोगों के पास अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है वो होना बहुत जरूरी है। एमए में आपने जहां से भी मास्टर्स की है, यू शुड ऑल हैव योर ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फ्रॉम विच यू हैव पास्ड योर मास्टर्स। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट document which they ask for. We have seen our colleagues who have lost the admission just because उनके पास उस समय दिखाने को तुरंत कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं था। तो प्लीज काउंसलिंग के वक्त वो कैरी करिएगा, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट कैरी करिएगा और मास्टर्स की अपनी डिग्री और मार्कशीट्स कैरी करिएगा, ऑल इन ओरिजिनल। एनी अदर क्वेश्चंस? Anyone? Any more queries? ठीक है, मैं आपको और बता देती हूँ। जब आप ज्वाइन करेंगे, ये 2 साल का कोर्स रहेगा एंड यू विल गेट अ स्टाइपेंड ऑफ 12,000 पर मंथ एंड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। और आप लोग लकी हैं, लास्ट ईयर से ही हॉस्टल अलॉटमेंट भी स्टार्ट हो गया है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ टेकिंग अ पीजी और रेंटल फ्लैट इन चंडीगढ़। You will get good one-room sets in the hostel premises of GMCA itself. They have started this facility from last year or so. तो वो बहुत अच्छा रहेगा, मेस फैसिलिटी आपकी रहेगी साथ में। एंड ऑल्सो देयर इज जहाँ तक एमफिल का वो है ड्यूरेशन, वो 2 years का कोर्स है, बट इन एनी केस इफ यू लाइक आर अनेबल टू कंप्लीट इट इन 2 years, तो आप एमफिल को 4 साल के वक्त में भी क्लियर कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का रूल है, बट नॉट बियॉन्ड 4 years। एंड ऑल्सो इफ किसी को जैसे फर्स्ट ईयर में क्लियर नहीं कर पाए एग्जाम्स, तो यू गेट 3 chances to clear your compartment papers or any subject which a person has failed in. They get 3 chances to clear the first year. Similarly, अगर सेकेंड ईयर में कोई पेपर नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कोई भी, तो उसके लिए भी आपको 3 chances दिए जाते हैं। जो फर्स्ट ईयर होता है वो मेजरली हमारा साइकोडायग्नोस्टिक पे बेस्ड होता है एमफिल का। लाइक यू आर टॉट लाइक वैरायटी ऑफ टेस्ट, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ टेस्ट, यू आर गिवन लेक्चर्स ऑन डिसऑर्डर्स, यू आर ग्रिल्ड लाइक। और अगर हम एमए के बाद एमफिल में जा रहे हैं, तो मैं लाइक आई होप यू ऑल आर अवेयर दैट दिस इज प्योर क्लिनिकल थिंग। एमफिल इट्स नॉट लाइक हम एकेडमिक कोर्स में जा रहे हैं और हमने लेक्चर्स बंक कर दिए हैं, 9 to 5 है बट हम कभी भी 2 लेक्चर अटेंड करके जा सकते हैं। नो, यू कांट डू दैट। इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। 9 to 5 आपके ड्यूटी टाइमिंग्स है बकायदा। उसके बाद भी अगर पेशेंट बच रहे हैं, हमने नहीं फिनिश किए हैं, टिल द टाइम द पेशेंट्स आर नॉट ओवर, वी हैव टू गिव आवर ड्यूटीज इन द हॉस्पिटल। सो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। मास्टर्स के बाद एमफिल की सेटिंग में जाना बहुत ज्यादा मतलब हमसे एफर्ट्स और स्किल्स डिमांड करता है, बट येस, once you go within 1-2 months, you start enjoying it and it's very nice. And the best part is we work as a team there. So your colleagues will be the MD psychiatry students, psychiatric nursing के students रहेंगे आपके साथ, psychiatric social work के students रहेंगे। So we all work in a team. So जैसे कि मैंने आपको पोस्टिंग के एरियाज बताए थे, वहां पे इन सब एरियाज में से भी एक एक रहते हैं। लाइक देयर इज अ साइकेट्रिक सोशल वर्कर ऑल्सो, देयर इज अ साइकेट्रिक नर्स ऑल्सो, एंड देयर इज अ साइकेट्रिस्ट ऑल्सो। सो वी वर्क देयर एज अ टीम। अपार्ट फ्रॉम दैट, कई बार विद इन 9 to 5 के टाइमिंग्स में, या कई बार अर्ली मॉर्निंग, या कई बार पोस्ट 5, वी ऑल्सो हैव केस कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार्स, जर्नल क्लब्स, वेरिन जहाँ पे हम सबको कभी ना कभी चांस के अकॉर्डिंग एक केस जो हमें लगता है कि यस it's a very different case and I need information from all the sources I can get,
तो वो आपको वहां से केस कॉन्फ्रेंस में आपको मिल जाती है। जैसे कि आपको एक पेशेंट अलॉट हुआ, लेकिन वो आपको बहुत ही डिफिकल्ट केस लग रहा है, तो यू कैन चूज इट एज योर केस कॉन्फ्रेंस, वेर इन यू कैन पोर्ट्रे द केस इन डेप्थ एंड यू कैन पुट इन द क्वेश्चंस इन द ऑडियंस एंड यू विल बी गाइडेड कि इसमें अब आगे आप क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, डायग्नोस्टिक क्लैरिफिकेशन कैसे करनी है। सो इन डेप्थ नॉलेज इज गिवन। सो व्हेन यू विल कम आउट आफ्टर 2 years, I can assure you, you will be so confident that you are able to start off your clinical practice. मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस आप आराम से कर पाएंगे। एमए के लेवल पे हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है डिसऑर्डर्स की, कोई क्लैरिटी नहीं होती है कि डिसेबिलिटी क्या होती है, कौन सा डिसऑर्डर किससे ओवरलैप करता है। बट वंस यू कम आउट ऑफ 2 years और ऑफ एमफिल कोर्स, बिलीव मी, यू विल बी अ चेंज प्रोफेशनल। और क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं आप एंट्रेंस को लेके? प्लीज आस्क गाइस, यू आर जस्ट लेफ्ट विद 1 day। अमोल मैम, मैं अतुल, मैं थोड़ा सा फैकल्टी मेंबर्स के बारे में आप बताएंगे इन लोगों को, तो दैट विल बी बेटर थिंग, राइट? Okay. So, as far as faculty is concerned, we have clinical psychology में हमारे 3 faculty posts हैं, जिसमें से we have our assistant professor and he is the in charge of your MPhil, the whole program. He's Dr. Manoj Kumar. He's our assistant professor clinical psychology, and he's a wonderful person. He teaches you in depth and ऑल्सो उनका जो मेजर एरिया है वो न्यूरोसाइकोलॉजी का है। तो आपको कोई भी नॉलेज न्यूरोसाइकोलॉजी की चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट हिम एंड everyone is so keen to give you knowledge that उनको आप लोगों में वो जज्बा होना चाहिए कि हम 5 बजे के बाद भी रुक सकते हैं, but your professors will be always there for you। दूसरा हमारे पास है मिस आरजू गुप्ता है। शी इज योर साइकोथेरेपिस्ट प्राइमरीली, उनकी बिहेवियरल थेरेपी में ड्यूटी रहती है। तो जो हमारा 2nd year का मेजर साइकोथेरेपी का पार्ट है, दैट इज टेकन बाय हर। And the third faculty which we have is Dr. T.K. Singh. He is the associate professor clinical psychology, और वो भी बहुत ही पहले तो सारे ही अच्छे इंसान हैं, एंड everyone knowledge wise they have a good knowledge base and they are skilled in their fields. So ये हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी की फैकल्टी है। जहाँ तक साइकैट्रिस्ट से रिलेटेड हमारी फैकल्टी है, वो जितने भी वहाँ पे साइकैट्रिस्ट है, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं डिपार्टमेंट के, फॉर एग्जाम्पल द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड यू आर लकी दैट द HOD ऑफ साइकैट्री डिपार्टमेंट इज इवन द डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ GMCH, Dr. B.S. Chavan. He earlier has worked in AIIMS and then he joined the psychology department of Chandigarh psychiatry department, and अभी ही हमारे बैच के दौरान ही 2017 में लगा लीजिए, he was also selected as the director principal। तो वो एक फेवरेबल पॉइंट हमारे लिए हमेशा रहता है, बिकॉज ही इज द HOD ऑफ साइकैट्री ऑल्सो। whenever you are in any need you can go and contact him. He is also a humble person, always available, और बहुत अच्छी ही नॉलेज उनसे मिलती है। जैसे कि वार्ड राउंड्स में जो उनका डे है वो उस दिन आएंगे, तो जो सीखने को पेशेंट के बारे में उनसे मिलता है वो अपने आप में बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जो साइकैट्री वाली डिसऑर्डर लेवल पे नॉलेज है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी हमें नहीं होती है जितनी साइकैट्रिस्ट को होती है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइको डायग्नोस्टिक। तो साइकैट्रिस्ट में अगर हम देखें तो 8 MD स्टूडेंट्स रहेंगे आप लोगों के साथ में, और 4 to 5 साइकैट्रिस्ट रहेंगे, जिसमें कि देर आर 2 प्रोफेसर्स लाइक Dr. B.S. Chavan, there is Dr. Ajit Sidana. You might have read their articles and they have lot of papers published in their names. There is Dr. Preeti Arun. She is the topmost #1 psychiatrist of India, child psychiatrist, Dr. Preeti Arun. तो वही ट्यूजडेज को जो मैंने आपको बताया स्पेशल क्लिनिक है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट का क्लिनिक वही हैंडल करती है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कम ब्रिंगिंग देयर चिल्ड्रन कि कैसे मैनेज किया जाए, क्या किया जाए। सो सम हाईली रिकॉग्नाइज्ड पीपल आर अ पार्ट ऑफ GMCH फैकल्टी। उसके बाद साइकैट्रिक सोशल वर्क की भी फैकल्टी रहती है, हम उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर हमें कोई रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड इशू है, या से एनी लीगल इशू इज कमिंग व्हेन वी आर डीलिंग विद द पेशेंट। सो वी ऑलवेज हैव अ साइकैट्रिक। या कई बार हमारे पास कोई पेशेंट आया टेस्टिंग के लिए एंड इट्स अ रोड साइड पेशेंट, देन व्हाट विल यू डू?
एज अ प्रोफेशनल इट्स योर ड्यूटी। हमारी जिम्मेवारी यहीं तक नहीं है कि हमने टेस्टिंग कर दी और छोड़ दिया। एज अ एमफिल वी आर अ क्लिनिशियन, सो वी हैव टू कॉन्टैक्ट द साइकेट्रिक सोशल वर्कर। उनकी भी 2 फैकल्टी पोस्ट हैं वहाँ पे, एक प्रोफेसर है वहाँ पे डॉक्टर साहू एंड देयर इज अनदर फैकल्टी। सो यू हैव टू कॉन्टैक्ट देम एंड टेल देम कि ऐसे ऐसे हमारा पेशेंट है, इसको घर की जरूरत है या ये स्ट्रीट पेशेंट है, तो वो उसके अरेंजमेंट्स वो करेंगे। एज आई सेड यू, इट्स अ टीम। So as far as faculty is concerned, it's very good and you are really, you feel pleasurable that yes, you are meeting such people. और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सिर्फ साइकेट्री हॉस्पिटल नहीं है। जैसे कि इभास है, ऑल्दो इट्स अ वेरी नाइस इंस्टीट्यूट, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वो भी, लेकिन मैं आपको एक डिफरेंस बता रही हूँ। इभास इज अ साइकेट्री, प्योरली साइकेट्री इंस्टीट्यूट। जैसे कि वहां पे जो पेशेंट आएंगे वो सिर्फ साइकेट्रिक पेशेंट्स ही होंगे। यहाँ पे जो पेशेंट्स आएंगे वो आपको हर डिपार्टमेंट से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द मेडिसिन डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द ENT डिपार्टमेंट। वाई? बिकॉज इट्स अ जनरल हॉस्पिटल। तो कई बार क्या होता है कि हमारा बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो पहले उसके पेरेंट्स उसको कहाँ लेके जाएंगे? ENT में, ईयर एंड नोज, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू स्पीक। सो ओवर देयर इट विल बी जज्ड दैट नहीं, इसको ENT की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली हिज माइलस्टोन्स आर डिलेड, यानी कि इसकी डेवलपमेंट डिले हो रही है, यानी कि इसकी IQ कम है। तो ऐसे हमारे पास रेफर किए जाते हैं केसेस। सो देयर वी आर बेनिफिटेड बिकॉज वी हैव एन एक्सपोजर टू वाइड वेराइटी ऑफ पेशेंट्स। बिकॉज कई बार जो आपका वही बायोसाइकोलॉजी का पार्ट आ गया, बिकॉज कई बार जो प्रॉब्लम है वो दिखने में फिजिकल होती है बट द अंडरलाइंग कॉज इज साइकोलॉजिकल। सो दैट इज अ बेनिफिट ऑफ डूइंग योर MPhil फ्रॉम GMCH बिकॉज इट्स अ जनरल हॉस्पिटल। एनी अदर क्वेश्चंस? Ma'am, how important is a migration certificate? हाँ, good question. My सर्टिफिकेट इज इम्पोर्टेंट बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट काउंसलिंग के तुरंत समय, उसी समय। माइग्रेशन डिपॉजिट करने के लिए आई थिंक दे गिव यू अ टाइम ऑफ से 2 to 3 months because that has to be deposited in Punjab University because GMCH, it's a central government aided hospital but it's affiliated to Punjab University. So आपको अगर उस समय आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए आपको एक पीरियड दिया जाएगा जिसमें कि आप उसको अरेंज करा के पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके डिपॉजिट करा सकते हैं। वो इमीडिएटली उसी समय काउंसलिंग के वक्त नहीं चाहिए। Ma'am, as we don't have a degree right now, so like can we provide provisional one? No, they won't consider it. They won't. Ma'am, but like They'll only consider provisional. They will allow you to sit in the exam, but when you have to show your documents, उस समय पे आपको original दिखानी ही पड़ेगी। Ma'am, but like from for my university, they provide like one after 1.5 years. So I think उसके लिए ये कुछ स्पेशल क्लॉज है या कोई आपको वो के कारण अलाउ करते हैं, दैट आई कांट से, बट एज फार एज आई नो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। मालिका, उसमें आई थिंक you have to give like one affidavit with reason that why you are not able to submit, and then they will give you time. Usually they like institutes gives the time, right? So don't worry about that. Okay, thank you, sir. Ma'am, Yes. I'd also like to know if somebody does not have the character certificate now, what are the possibilities? What can one do? I think जैसे कि सर ने बोला, मे बी दे हैव अ क्लॉज लाइक कुछ डिपॉजिट कराओ या कुछ हो सकता है, बट दैट इज आप अगर GMCH का प्रोस्पेक्टस देखें जो आपने फ्रेंड्स का फॉर्म भरते हुए पढ़ा होगा, उसमें ये 4 चीजें ही जो उन्होंने लिखी है वो मैंडेटरी है, विच इज मर्टिकुलेशन, विच इज कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड विच इज योर मास्टर्स जो पासिंग डिग्री है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स। तो बाकी
ये आपको वहां जाके ही पता लगेगा कि अगर आपके पास नहीं है एंड यू आर इन द मेरिट लिस्ट, एंड लेट्स सी व्हाट दे डू। मे बी दे गिव यू से, जैसे सर ने बोला, कोई एफिडेविट लेके, बट मुझे सिर्फ मेरे टाइम का ही पता है। सो आई रिमेम्बर दैट दे वर वेरी स्ट्रिक्ट विद द कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बट आई थिंक द सिचुएशन विच इज गोइंग, एवरीवन नोज, कोई जा नहीं सकता है, कोई आ नहीं सकता है, तो आई थिंक इस बार तो कंसिडरेशन मिल सकती है। सो डोंट वरी, गिव योर एग्जाम फ्रीली। Ma'am, if someone done masters from IGNOU, then it is eligible? No, it's not eligible. Correspondence, masters done through correspondence mode or distance learning mode is not eligible for admission in GMCH. Only regular mode. That too from a UGC recognized university. Other queries? I think as you told me, right, like you have cleared other examinations also, right? Yes. So what is the difference between like other institutes entrance examinations and this GMCH one? So जो जैसे कि मैंने आपको बताया, GMCH का जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ टिल्ट रहता है। What was my personal experience was कि MA के लेवल पे हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है डिसऑर्डर्स की जितनी उस पेपर में पूछ ली जाती है, फ्रैंकली स्पीकिंग। जो निमहांस का, आई हैव क्लियर्ड माय निमहांस एग्जाम आल्सो, बट आई डिडंट वेंट ड्यू टू पर्सनल इश्यूज, आई डिडंट वांट टू ट्रैवल ऑल द वे टू बैंगलोर। सो निमहांस का जो आपका पेपर रहता है वो इससे बहुत डिफरेंट होता है। पहली बात, GMCH का जो पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बहुत कंफर्टेबल हैं कि, और ये ध्यान रखिएगा कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आइएगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो पहले तो आप क्विकली जाइए, स्क्रॉल करिए कि ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, वो आपने कर दिए मार्क। उसके बाद टेक योर टाइम एंड गिव योर बेस्ट शॉट विच यू फील, बिकॉज इसमें आपको नेगेटिव मार्क नहीं होगा। निमहांस हैज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स पर क्वेश्चन, तो वहां पे सिचुएशन पूरी बदल जाती है। और उसका जो पेपर होता है that is equally divided, like it's not tilted towards clinical psychology. अगर उसमें clinical psychology आएगी भी तो वो symptom level पे नहीं आती है। I hope you are trying to understand. It will come more at the level of history, जैसे कि जो आपके हिस्टीरियाज है उनको क्या बोला जाता था, like they are also called conversion disorders, इस तरह के questions। जैसे पहले मैंने आपको बताया स्किज़ोफ्रेनिया है, ये नाम पहले किसने दिया, और सब टाइप्स कितने होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। निमहांस हैज मोर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लाइक विच आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट उसके लिए आपको डेप्थ में बुक्स पढ़नी होंगी। जैसे कि निमहांस में ऐसे क्वेश्चन होंगे कि 16 PF है, सिंपल क्वेश्चंस नहीं। 16 PF में जो रेमंड कटेल थे उन्होंने कौन सी टेक्निक लगाई 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स निकालने के लिए। तो फैक्टर एनालिसिस तो पता है, बहुत इजी है, बट फैक्टर एनालिसिस के अंदर भी कौन से तरह की टेक्निक्स थी, लाइक द मैट्रिक्स ग्रिड ही यूज्ड और व्हाटएवर ही यूज्ड, बट यू हैव टू गो इन डेप्थ ऑफ इन ईच एंड एवरीथिंग। निमहांस के पेपर के लिए आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि फ्रॉइड ने कौन सी बुक्स लिखी हैं, उसकी जो डॉटर थी एना फ्रॉइड, व्हाट बुक शी हैज रिटन, व्हाट वाज हर मेजर एरिया। आपको एडलर की चाइल्डहुड पता होना चाहिए, लाइक इन एट माय टाइम वी हैड अ क्वेश्चन लाइक एल्फ्रेड एडलर, वो कहाँ के रहने वाले थे। तो इतनी डेप्थ में भी आपको निमहांस में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पर्सनालिटी के लिए आप हॉलन लिंजे पढ़ेंगे, तो अगर एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी आएगी तो उससे पहले उसके बारे में हमें बताया गया होगा कि ही वाज बोर्न इन सो एंड सो ईयर एट दिस प्लेस। तो निमहांस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरी लेवल पे ही इन डेप्थ जाते हैं, rather than being more symptom oriented. Clinical psychology होती है, but that is again theory oriented, not symptom oriented. जो GMCH का पेपर होता है that is more clinical psychology with focus on symptoms of disorders. तो वो बिल्कुल ही clinical level पे चली जाती है।
और निमहांस के पेपर में इक्वल वेटेज दी जाती है, लाइक स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जनरल साइकोलॉजी हैज लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सोशल साइकोलॉजी हैज इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टेस्टिंग हैज इक्वल नंबर. तो निमहांस का पेपर बहुत ही, आप कह लीजिए, इक्वली डिवाइडेड सॉर्ट ऑफ कह लीजिए. इभास का भी पेपर ऐसा ही होता है, इट्स ऑल्सो इक्वली डिवाइडेड एंड इट्स मोर ऑफ थ्योरेटिकल रेदर देन बी क्लिनिकल. तो आपको ज्यादा उसमें आपके एमए के ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से आने चाहिए. इट्स ओनली GMCH which gives you like the clinical background. उसके लिए आपको clinical knowledge ज्यादा चाहिए. इभास, निमहांस, मास्टर्स concepts clearly read in thoroughly in depth, you will clear.